Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue Social and Political Life, that is Civics chapter number 1 part 2, the Indian Constitution. Now we have already studied about the national movement and about the introduction part, that why do we need a constitution. Okay, now we are going to study about the Indian Constitution and its key features. In the beginning of 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence. हमारा national movement जो है वो फॉर्म हुआ था स्पेशली फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल से ही ये मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे फॉर सेवरल डिकेड्स. यू नो, 1 decade इज इक्वल टू 10 years. सो इतने साल के लिए हम लड़ते रहे जस्ट फॉर इंडिपेंडेंस. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट, जो नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए थे, तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, दे गेट डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. उन्होंने बहुत टाइम दिया था. दे हैव इमेजिन एंड दे हैव प्लान्ड मैनी थिंग्स फॉर व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. किसके लिए? कि एक फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए उसके लिए. सो आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फॉर्म हुई थी 1946 में टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था, बट हमने उसको अमेंड किया 26 जनवरी 1950 से. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. Of course हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिसमें different communities के people है जो different language बोलते हैं, they belong to different religion and उनके culture भी सबके different है. But ये सबको मिलाकर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट देन टू आर नेशनलिस्ट मेड इट. लेट्स डिस्कस अबाउट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. के की फीचर्स क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम कि क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. सो फर्स्ट की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरलिज्म. इट रिफर्स, फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म मीन्स कि हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं, बट मोर देन वन गवर्नमेंट रूल्स. इट मीन्स दैट हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, बट हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट रूल करेंगी, सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरा प्रेशर ना आ जाए. सो फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हमारे कंट्री में जो 3 टायर सिस्टम है, that is central government, state level पे state government, and at the local level local government is there. So federalism means existence of more than one level of government in the country. In India we have government at the state level and the center, and after that Panchayati Raj is the third tier of government which works at the local level. Citizens are governed by the laws and policies made by each of this level of government. Citizen को govern कैसे करते? By laws and policies. जो हर एक local government form होती है वो laws बनाते हैं, and accordingly people need to follow it. And this is done by different levels of government. So that is federalism. Federalism means existence of more than one level of government, that is central, state and local. Second is parliamentary form of government. In India we have parliamentary system, but when we talk about USA there is presidential system. Parliamentary system जहाँ पे we are having 2 houses of parliament are there, right? Lok Sabha, Rajya Sabha. But in USA only presidential system. वहाँ पे कोई prime minister नहीं होता, वहाँ पे presidential system चलता है. President is only the head of the country. The different tiers of government consist of representatives who are elected by the people. जो representatives होते हैं पार्लियामेंट में, जो पीपल के थ्रू इलेक्ट हुए होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल द सिटीजन. ये क्या है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? मीन्स person above 18 years of age, they have a right to contest, या तो to vote in the election, right? Not to contest, but they have a right to vote in the election. When they were making the constitution,
The members of the Constituent Assembly, around 300 members were there in the Constituent Assembly, those who were working for the Constitution. They felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and this would help encourage a democratic mindset. उन्होंने सोचा कि अगर हम ये एडल्ट सफरेज लाएंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो उससे हम encourage हो पाएंगे ये डेमोक्रेटिक माइंडसेट के लिए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए एंड ब्रेक द क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज जो पुराने टाइम में चलती थी, जो ब्रिटिशर्स ने कास्ट डिफरेंस और ये सब जो ऑलरेडी रखा था, जेंडर डिफरेंसेस एंड ऑल. सो उन्होंने सोचा कि हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज रखेंगे जिसमें मास वोटिंग होगा, पीपल के मासेस में व्यू आएंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट ये डेमोक्रेटिक कंट्री का एक ये हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट होगा. It means that the people of India have a direct role in electing their representatives of universal adult suffrage. क्या है मतलब people के पास directly right है to elect their representatives. उनका main role यही हो जाएगा. Every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest an election. और ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में उन्होंने ये इंक्लूड किया कि कोई भी पर्सन irrespective of her caste, religion, language, anything, they can contest in election. Of course उनके लिए special provisions है, special rules भी है कि क्या eligibility होनी चाहिए, वो सब mention किया है, but that is not required here. Next, third comes separation of powers. According to the constitution, there are 3 organs of government. हमें पता ही है, legislative, executive and judiciary. legislature का काम है to make the laws, executive का काम है to amend the laws या तो to execute the laws and judiciary का काम है कि to give the justice देने का काम. The legislature refers to our elected representatives. legislature कौन है? तो elected representatives जो है वो legislatures है जो elect हुए हैं. अब एग्जीक्यूटिव कौन है? तो एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉस. एग्जीक्यूटिव जो लॉस को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड दे विल रन द गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव है. और जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री. जुडिशरी क्या है? कोर्ट्स का काम करती है. सो ये 3 ऑर्गन्स को डिवाइड कर दिया. लेजिस्लेटिव जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लेजिस्लेटिव है. एग्जीक्यूटिव मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं. जुडिशरी मतलब कोर्ट्स जो जस्टिस देंगे. In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution says that each of these organs should exercise different powers and no one will interfere. कोई भी organ दूसरे organ में interfere नहीं करेगा. Legislature will not interfere in matters of executive. Executive will not interfere in matters of judiciary. They all have individual powers. They all have different powers. Okay, so that was the third point. Next comes fundamental rights. Fundamental rights protect citizen against arbitrary and absolute exercise of power. Fundamental rights क्या है? Fundamental rights mentioned in the constitution जो main laws है that we need to follow, right? And here the arbitrary means when nothing is fixed and it is instead left to one's judgment. मतलब ये आर्बिट्री रूल के अगेंस्ट है कि एक ही जन बोलेगा, ऐसा नहीं. फंडामेंटल राइट्स इज़ फॉर ऑल एंड इट हैज़ टू एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स. कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करती है? राइट ऑफ इंडिविजुअल, हर एक पीपल का राइट है अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल. क्यों ऐसे बोला है? बिकॉज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है. ये सब हमें बोल सकते हैं कि हमारे साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो उसके अगेंस्ट भी हम लड़ सकते हैं. As Dr. Ambedkar has said about this fundamental rights, their object is twofold. डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है about this fundamental rights. क्या है उसके 2 ऑब्जेक्टिव? तो फर्स्ट इज every citizen must be in a position to claim those rights. आपको डरना नहीं है अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो you need to claim for your right कि हमारा ये राइट हमारे से ये राइट क्यों छीनी गई. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास
ऑलरेडी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, बट अगर आपको कोई मना करे दैट यू डोंट हैव एनी राइट टू बी एजुकेटेड, या आपको पढ़ाई नहीं करनी है, then you can claim for it, you can complain it, and you can fight for your right. And second is, this rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. जो भी अथॉरिटी को ये पावर्स मिले हैं, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी बाइंडिंग टू अस, सबको फॉलो करना है. लेट्स टेक अ शॉर्ट लुक, क्विक लुक फॉर दिस 6 fundamental rights. That is, first is right to equality, second is right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion, fifth is cultural and educational rights, and sixth is right to constitutional remedies. Now last point is secularism. Secularism, what do you mean by secularism? India is a secular state, as we all know. Secular state means where no state is considered yet एज एन ऑफिशियल रिलीजन. मतलब कोई भी पर्सन को, कोई भी स्टेट को ऐसे कंसिडर नहीं किया है एक, या तो स्टेट में कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर रिलीजन को कंसिडर नहीं किया है एज एन ऑफिशियल रिलीजन. अ सेक्युलर स्टेट इज़ दैट in which the state does not officially promote any one religion as their state religion. मतलब कोई भी स्टेट में ऐसे अथॉरिटी नहीं दी है कि ये रिलीजन को आप एक ऑफिशियल रिलीजन बनाओ. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country, including the representatives that we elect to rule us. constitution का ये मेन रोल है, क्रूशल रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है इन लेइंग आउट द आइडल्स. कौन से आइडल्स? दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, हर एक सिटीज़न जो है कंट्री के उनको दिए हैं, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस. ये हमारे पास राइट है कि हम ऐसे पर्सन को इलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे चॉइस का है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड हुआ है, बना है, और वो चेंज भी होता रहता है टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी. बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लाना इम्पोर्टेंट है. सो दे आर चेंजिंग इट सो दैट हम भी उससे अपडेटेड रहे. द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैब. बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ भी है फीचर्स में, दैट आर नॉट ईजी इनफ टू ग्रैस्प इट. बट डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, क्योंकि हम धीरे धीरे हर एक फीचर्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे. अब जैसे जैसे आगे जाओगे यू विल लर्न ऑल अबाउट इट, all about politics in the civics chapter. So that was about the first chapter, that is the Indian Constitution. If you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel and even share my video. Thank you.